Hi students, Arun sir here. Have a good day. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. The first video on buyback of shares, TY Becom 5th semester. Here I am going to discuss in this video the finer points of buyback of shares, introduction, meaning, distinction between buyback and redemption of preference shares, and the benefits of buyback. Before moving forward, let me do the meaning of the heading buyback of shares. It is self-explanatory. Buyback, buying our own shares from the market. In SY Becom, we have seen how shares are issued to public for collecting money. This chapter is exact opposite to that. In case of issue of shares, we issue shares and receive money. The opposite, in buyback of shares, we take back shares and issue money. The related section of buyback of shares is section 68 to 70 of Companies Act 2013. Earlier it was 77A and 77AA of Companies Act 1956. Before introducing this chapter, let us have the outline, total picture of this chapter. Any student of TY Becom before entering this chapter must know the basics. And here is an attempt. One, it is a latest development. Buyback of shares is the latest development in corporate finance. This means it is new addition in your syllabus. Point number two, in your university question paper, normally it appears in question number 2. आपका बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 ये चैप्टर का होता है. लास्ट ईयर का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखते हो, उसमें इसमें नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन बी बायबैक का था और क्वेश्चन बी बायबैक का था. इसी वजह से पॉइंट नंबर 3, दिस चैप्टर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, solve the problem. You must attempt this question on buyback. I mean to say it is a compulsory question. It is easiest because the very same chapter in different form you have seen in SY Becom in the name of redemption of preference share. SY में आपने redemption of preference shares पढ़े हैं. Same redemption of preference share है, इधर buyback of equity shares है, entries nearly same है. समझे कि नहीं? वही CRR क्रिएट करने का, वही इन्वेस्टमेंट को बेचने का, वही रिटर्न करने का. पॉइंट नंबर 4, सिमिलर टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर SY Becom as I said earlier. Fifth most important, weightage for this chapter in your board, that is university question paper is 29 marks at least. 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का मिनिमम एक थियरी आएगा, कभी कभी 10 मार्क का थियरी भी आ सकता है, और 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आएगा. टोटल ऑल इन ऑल 29 to 30 मार्क्स फ्रॉम दिस. अगर आपने ऑप्शन भी ऐड करते हो 49 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर में ए चैप्टर से आप देख सकते हो. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ये चैप्टर में आने वाला क्वेश्चन ए टाइप का हो सकता है. सिंपल क्वेश्चन विद जर्नल एंट्री. 2, you have to make a table when offer price is given as to compliance of conditions of buyback. आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा एक पेज का, जिसमें कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ बायबैक को आपको बताना पड़ेगा. और जब भी आपको ऑफर प्राइस देते हैं, देन यू हैव टू प्रिपेयर ए टेबल व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन. आपको ऐसा एक टेबल बनाना है, कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ बायबैक, ऑफर प्राइस आपको देते नहीं, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक एज पर द कंडीशन और ऑफर प्राइस भी फाइंड आउट करना है. तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे बी आस्क्ड. मूविंग नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर? आपको क्वेश्चन पेपर में क्या देते हैं? लाइक redemption of preference share, you will be given a balance sheet on the date of buyback.
बायबैक का डेट में आपको एक बैलेंस शीट देते हैं एंड you'll be given a very few adjustment as to conditions of buyback. कितना शेयर बायबैक करना है, कौन सा ऑफर प्राइस में बायबैक करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट कितने में भेजा, कुछ नया फ्रेश इशू किया क्या, ये आपको देंगे. So you'll be given a balance sheet plus few adjustment like redemption of preference shares. From this you have to solve the question on buyback. Next, what may be expected? आपको क्या करना है एग्जाम में? हो सकते हैं you may be asked to prepare a journal. You may be asked to prepare a table as to compliance of condition, as said earlier. And you may have to prepare a balance sheet sometimes and notes to accounts sometimes. It depends on the paper setter. So, इसका अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. Next, key point to remember, important point to remember. Before solving any problem, you must know the conditions of buyback as per section 68. एक बार कंडीशन को आप समझोगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है. बाय हार्ट द जर्नल एंट्रीज. आपको जर्नल एंट्री जो सिखाया जाएगा हार्डली 8 to 9 उसको आपको बाय हार्ट करना है. सो कंडीशंस ऑफ बायबैक और जर्नल एंट्री आता है, आप यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन बायबैक. समझा? यस. नॉर्मली क्लासरूम कंडीशन से 1 month का मीन्स चैप्टर था 30 से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग आपका होमवर्क्स. और अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं बायबैक के ऊपर, कम से कम आप 30 to 35 मिनट्स का अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. ये चैप्टर में एक्सपेक्ट किया हुआ क्वेश्चन मैंने जो 5 क्वेश्चन नीचे दिया है उसमें से एक आना चाहिए आपका एग्जाम में. अगर वो 5 मार्क का क्वेश्चन हो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 10, 10-12 मिनट में आप कंप्लीट करना चाहिए. अगर 10 मार्क का क्वेश्चन हो, आप 20-25 मिनट का अंदर उसको कंप्लीट करना चाहिए. वो भी टाइम लिमिट मैंने बताया. क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? एडवांटेज ऑफ बायबैक, sources of buyback, conditions of buyback, buyback versus redemption of preference share. What do you mean by statutory reserve? इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आना चाहना है. उसमें कंडीशंस ऑफ बायबैक आएगा तो 10 मार्क का रहेगा, बाकी कौन सा क्वेश्चन रहेगा तो शॉर्ट नोट्स के लिए 5 मार्क आएगा. तो दिस इज द आउटलाइन समरी ऑफ दिस चैप्टर. बोलने का मतलब है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन करना है. आपको एक टेबल और एक few journal entries और बैलेंस शीट करने को पूछा जाएगा. और थियरी क्वेश्चन में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा. This about the outline of this chapter. Hope each one of you understood the totality of this chapter. ये चैप्टर को एंट्री करने का पहले इसका नॉलेज बहुत जरूरी है. Now let me introduce this chapter. What is buyback? This buyback is also called as shares buyback or stock buyback. इसको shares buyback भी बोलते हैं, stock buyback भी बोलते हैं. To buy back means purchase our own shares, especially equity shares. Buyback is a process of capital restructuring. Buyback अपना कंपनी का रीस्ट्रक्चर करने का एक तरीका है. जब हम इनिशियली हमको मालूम नहीं था हमको कितना कैपिटल चाहिए, हमारा कंपनी क्या प्रोग्रेस में जाने वाला है, हमने शेयर इशू किए थे. लेकिन जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेसिव बना तो हमको मालूम पड़ा हमारा कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल को कम करना है, बढ़ाना है. तो ऐसा एक कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी है, प्रोसेस है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियली अपने को एकदम स्ट्रॉन्ग करने का. भाई ऐसे क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इश्यू ऑफ शेयर्स है ना, शेयर इश्यू कॉस्टलीस्ट इश्यू होता है व्हेन कंपेयर टू डिबेंचर एंड अदर कॉर्पोरेट फाइनेंस मेजर्स. ये कॉस्टली है, इसलिए जितना कम शेयर भेजेगा उतना अच्छा. क्योंकि एक बार शेयर भेजने के बाद आपको शेयर होल्डर्स को आपका प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है डिविडेंड के रूप में. तो जितना प्रॉफिट है उतना डिविडेंड देना पड़ता है, तो कॉस्टली है. उसके बदले में आप प्रेफरेंस शेयर इशू करो या डिबेंचर इशू करो, एक फिक्स्ड परसेंटेज जो आप इंटरेस्ट या डिविडेंड दे दो, आपका काम तमाम. समझा? इफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन 68 कैन गो टू द मार्केट and buy back its own shares by fulfilling certain conditions. अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, और
आपने सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आपने मार्केट में जाके खुद का शेयर को वापस खरीद सकता है। यू मे आस्क व्हाई? आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आपका कंपनी का शेयर कैपिटल को कम करना है एंड यू आर हैविंग सरप्लस आइडल मनी विद यू एंड देयर इज नो स्कोप फॉर एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड, देन बायबैक इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आपका पास सरप्लस मनी, आइडल मनी पड़ा हुआ हो और आपका सामने कोई भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आता हो और आपको आपका कंपनी का शेयर कैपिटल को कम करना हो, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स एज पर सेक्शन 68। अंडरस्टूड? दिस इज द इंट्रोडक्शन, होप ऑल ऑफ यू गॉट। नेक्स्ट, मीनिंग वेरी सिंपल, पहले बोल चुका हो। सो बायबैक मीन्स buying back by a company of its own share securities from their holders from the open market. ओपन मार्केट में जाके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उसका शेयर्स या सिक्योरिटीज को खरीद लेना, वापस खरीद लेना, इसको बोलता है बायबैक। नाउ व्हाई बायबैक? बायबैक क्यों करना है? हाँ, मैंने पहले बोला आपको आपका शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, आपको आपका अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना है, आपको आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, आपको आपका कंपनी का मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ाना है और आपको आपका कंपनी का आइडल जो कैश है उसको अच्छे तरह से यूटिलाइज करना है, आपको आपका जो आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड है उसको कम करना है। यस, बायबैक इज द बेस्ट नोन सोर्स। होप यू अंडरस्टूड व्हेन आई से। ये कारण का वजह से बायबैक रिजॉर्ट करते हैं, हमने हर कंपनी ने रिजॉर्ट करता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बायबैक? बायबैक का इफेक्ट क्या होता है? बायबैक करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, क्या रिजल्ट होता है? पॉइंट नंबर 1, it leads to reduction in your share capital to the extent of face value of shares bought back. जितना शेयर मार्केट से आपने वापस खरीदा उतना आपका शेयर कैपिटल कम होता है। 2, there is an outflow of cash to the extent of payment made to bought back shareholders. जो शेयर होल्डर्स को आपने पैसा दिया उतना कैश आपका मीन्स कैश आउट बैंक से कम होने वाला है। तीसरा, there is reduction in the number of shareholders from the membership list. शेयर होल्डर्स लिस्ट से आपका उतना शेयर होल्डर जितना आपने बायबैक किया उतना शेयर होल्डर्स का संख्या कम होने वाला है। These are the 3 effects of buyback. आपका शेयर कैपिटल कम होएगा, आपका कैश आउट बैंक कम होएगा और तीसरा आपका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ बायबैक। वेरी वेल अंडरस्टूड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी आस्क्ड इन बोर्ड क्वेश्चन पेपर एज ए क्वेश्चन, theory question. What is the distinction between buyback and redemption of preference share? Buyback और redemption का distinction, differences. मैंने इस साइड में पॉइंट्स दिया है, इस साइड में बायबैक ऑफ शेयर्स लिखा, ये साइड में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखा, पॉइंट बना के दिया, कोई टेक्स्ट बुक में ये दिखता नहीं है, मैं खुद बना के दिया है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, टाइप्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इसमें एनी टाइप ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट बैक, कौन सा भी टाइप का शेयर्स को आप बॉट बैक कर सकते हो, लेकिन बट इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ओनली प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। प्रेफरेंस शेयर्स को रिटर्न करते हो उसको बोलता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और एनी शेयर सिक्योरिटीज बॉन्ड्स को वापस लेते हो उसको बोलता है बॉट बैक। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, डेट ऑफ बायबैक, कब बायबैक करना है किसको भी मालूम नहीं, अचानक जब भी हमारे पास आइडल कैश पड़ा रहता है कंपनी रिसोर्ट करता है बायबैक को। सो डेट ऑफ बायबैक इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू, बट रिडम्पशन डेट इज नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का डेट पहले ही इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का टाइम में मालूम पड़ता है। आज अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, 10 बरस के बाद रिडीम कर रहा है, तो आज ही बताना कभी प्रेफरेंस शेयर्स को रिटर्न देना है। One date is known, second date is not known. Third, application of CB guidelines. CB rules and guidelines doesn't apply to buyback. Buyback के लिए CB rules apply होता है. CB rules apply and govern buyback. But in case of redemption of preference share, CB rules do not apply and never govern redemption of preference shares. एक जगह में CB rules apply होता है, एक जगह में CB rules
अप्लाई नहीं होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रूल्स। पॉइंट नंबर 4, सोर्सेस ऑफ बायबैक। आपको बायबैक करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्सेस का जरूरत है, दैट यू नो। सो इन केस ऑफ बायबैक देयर आर two sources. One is pre-reserves, divisible profit, or दूसरा security premium. Pre-reserves and security premium are two sources, but in this case of redemption of preference share, only divisible profit or pre-reserves, security premium cannot be used as sources of buyback. Applicable section. Buyback का section क्या है? Redemption का section क्या है? Buyback का section है 68 of the Companies Act 2013, earlier 77A of Companies Act 1956. अभी का सेक्शन 68 है, पुराना सेक्शन 77A है बायबैक के लिए। रिडम्पशन के लिए अभी का सेक्शन 55 है, पुराना सेक्शन 80 है। सो सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अर्लियर 80 applies to redemption of shares. Here section 68 of the companies act 2013 applies to buyback. राइटिंग ऑफ प्रीमियम। आपको मालूम है जब भी आप शेयर बायबैक करते हैं या प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं, आप जितना शेयर में इश्यू किया था, जितना रेट में इश्यू किया था, उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न करते हो, क्वाइट बट नेचुरल। अगर आपने 10 रुपए में शेयर भेजा था, रिटर्न करने के टाइम 11 रुपए दे सकते हैं, 12 रुपए दे सकते हैं, उसको ऊपर जो 1 रुपए 2 रुपए है ना, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो इसको कैसे ट्रीट करने का? यस, कंपनीज एक्ट इज साइलेंट एज टू राइटिंग ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। बायबैक का जो प्रीमियम कैसे पे करने का, इसका बारे में आपका कंपनीज एक्ट साइलेंट है, लेकिन रिडम्पशन का जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे राइट ऑफ करने का, कैसे ट्रीट करने का, वो सेक्शन 55 बोला है। आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है उससे आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स राइट ऑफ करना, समझा? सो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए इधर कंपनी एक्ट साइलेंट है, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सेक्शन 55 बोला था, आपका डिविजिबल प्रॉफिट को यूज करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द अमाउंट ऑफ बायबैक, कितना अमाउंट का हम बायबैक कर सकते हैं। इन केस ऑफ बायबैक इट इज ओनली अ पार्ट अमाउंट। अगर आपके पास 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, आप ज्यादा से ज्यादा 25,000 का ही शेयर बायबैक कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, होल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी बॉट बैक। पूरा आपने 1 लाख रुपीस को आप रिडीम कर सकते हैं। दिस इज पार्शियल अमाउंट, इट इज फुल अमाउंट। अंडरस्टूड? पॉइंट 7, अगर आपको डिस्टिंक्शन में आया 5 मार्क के लिए लिखो, पूरा का पूरा 5 मार्क मिला, आई अश्योर यू। All types of share can be bought back, only preference shares can be redeemed. Date of buyback is not known, date of redemption is known. CB rules apply, CB rules do not apply. Sources of buyback are pre-reserves and security premium. Sources of redemption is only pre-reserve. Section 68 applies, Section 55 applies. Companies act silent on premium on buyback. Section 55 applies to premium on redemption of preference shares. Part amount can be bought back, full amount can be redeemed. This is the distinction. Once again, nowhere you find this type of answer with points, everything is clearly given. समझा? तो जब भी आपका मीन्स पूरा वीडियो देखने के बाद उसको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, समझा कि नहीं? बेस्ट प्रेजेंट किया एग्जाम में, सीधा पुटअप करो, इसको पूरा माल मिलना है। कमिंग टू लास्ट, ये वीडियो का लास्ट पार्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बायबैक। बायबैक का फायदा क्या, समझे मैंने क्या बात किया? यस, आपको इधर 9 पॉइंट दिया है। क्वेश्चन अगर 5 मार्क के लिए आया, पिछले बरस आया था क्वेश्चन, तो ये 9 पॉइंट लिखना है, एक एक लाइन का आप एक्सप्लेनेशन जैसे मैं बात करता हूँ कर लेना, हो गया, आपको पूरा 5 मार्क मिलेगा, नॉट लेस देन 5, दैट इज श्योर। आपको तो मालूम रहे ना, अपना क्लास में कितने बार फाइनेंस में 100 में 100 लिया, इसका मतलब थियरी में पूरा मार्क्स मिलता है। वेरी रिसेंटली लास्ट ईयर का पहले बरस में 100 में 100 मिला है फाइनेंस में। ओके, बेनिफिट नंबर 1, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड सुटेबली। मैंने वही बोला था, इनिशियली हमको मालूम नहीं हमारे कंपनी को एक्चुअली कितना कैपिटल का गरज है। जैसे जैसे हमने कंपनी में मीन्स अकस्टमर्ड हो जाते हैं, हमको मालूम पड़ता है मीन्स हमारा कैपिटल ओवर हो गया या कम हो गया, तो वो हिसाब से हमने कैपिटल का रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बायबैक एक ऐसा तरीका है जिसका वजह से हमारा शेयर कैपिटल को अच्छे तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकता है। ऑप्टिमम कैपिटल को हम डिसाइड कर सकते हैं बायबैक से, समझा? अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया, बायबैक करके आपने ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन में ला सकता है। दैट इज वन एडवांटेज। Advantages number 2, due to buyback, return on capital will increase,
Net profitability will increase. Earning per share can also be improved. अभी आपका पहले शेयर कैपिटल 10 लाख था, सपोज आप 10 लाख का ऊपर डिविडेंड देते हो, प्रॉफिट रिमेनिंग सेम. अभी आपका शेयर कैपिटल आप 5 लाख मिला है, सपोज, ऐसे पॉसिबल नहीं, 5 लाख मिला है, आपका प्रॉफिट सेम रहता है, लेकिन आपका शेयर कैपिटल कितने में आया, 5 लाख में आया, आधा डाउन हुआ, तो आपका जो अर्निंग पर शेयर डबल होता है. कम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट बांट के देने से आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है. सो एक अच्छा बायबैक का प्रोसेस आपका रिटर्न ऑन कैपिटल को जरूर बढ़ाएगा, लॉन्ग टर्म में आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा लेगा और अर्निंग पर शेयर जरूर इंक्रीज होता है. एंड ड्यू टू दिस, पॉइंट नंबर 3, इट इंक्रीजेस इंट्रिंसिक शेयर वैल्यू इन द लॉन्ग रन. इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस, है ना. कभी भी इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक वैल्यू है, रियल ताकत है वो कंपनी का. सो कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को कवर करता है, तो इंट्रिंसिक शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा. एंड इन फ्यूचर योर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आल्सो इंक्रीजेस इन द स्टॉक मार्केट. जैसे आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, तो मार्केट प्राइस भी बढ़ता है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ता है. Who don't want this? किसको नहीं चाहिए, कौन सा शेयर होल्डर को नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना. सो बायबैक इज ओनली द आंसर. पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट कैन हैव बेटर कंट्रोल ओवर इट्स कंपनीज ड्यू टू लेस शेयर. ऑप्टिमम शेयर कैपिटल है, कम शेयर होल्डर्स है, कम शेयर है, तो कैपिटल सर्विसिंग बहुत इजीली होता है, समझा. तो आपको कंपनी के ऊपर बेटर कंट्रोल रहता है. कम कैपिटल में, कम शेयर होल्डर में, कम शेयर्स में कंपनी का सर्विसिंग करना कितना अच्छी बात होता है. मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम खुश होता है ये आपका बायबैक ऑफ शेयर से. नेक्स्ट 5th पॉइंट, एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लान एंड पॉलिसीज कैन कंटिन्यू विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. एक बार आपने बाहर का जो ताकत है, जो आपका कंपनी का शेयर खरीद के उसमें कंट्रोल अपना सकते हैं, अगर उन लोगों से आप दूर होते हो बायबैक का वजह से, तो आपका पुराना जो प्लान्स है, पुराना जो पॉलिसीज है, उसको आप कंटिन्यू कर सकता है. आपका बीच में इंटरफेयर करने वाला कोई भी नहीं है. आपका कंपनी का पूरा मैक्सिमम शेयर आपके पास है बायबैक की वजह से, तो आपका पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है. तो आप आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लान और पॉलिसीज को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी हिंडरेंसेस. नेक्स्ट, buyback helps the promoters to formulate an effective defensive strategy against hostile takeover bids. Today, wherever you go, it is the jamana of hunting. जिसके पास बहुत पैसा है, बड़ा बड़ा जो आपका कंपनी से छोटे छोटे कंपनी को खरीदना चाहते हैं, हंट करते हैं. अगर ये हंटिंग से आपको डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाना है, आप मैक्सिमम मार्केट से शेयर को वापस बायबैक करके अपने ताबे में रखो, तो बाहर का आदमी आपका कंपनी का शेयर को खरीद ही नहीं सकता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा होने दे. सो आपका एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कंट्रोल का पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ बायबैक. बायबैक में आपने पूरा मार्केट में चिल्लर जो शेयर्स है ना वो खरीद के अपने पास रखते हो, मैनेजमेंट का कंट्रोल अपने पास रखते हो, समझा. नोबडी कैन कम एंड क्वेश्चन यू. नेक्स्ट, investor can sell back their shares to company normally at higher than the market price. Buyback is always at premium normally. Yeah, जो कंपनी का शेयर आपने 100 रुपए में बेचे थे, रिटर्न करने के टाइम कोई आपको 300 रुपए भी दे सकता है, तो आप बैठे बैठे कमाओगे सिर्फ शेयर खरीदने से और बायबैक करने से. आपको इन्वेस्टर को फायदा है क्योंकि आपका 100 रुपए का शेयर के बदले में आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है. सो इन्वेस्टर कैन सेल बैक देयर शेयर्स टू कंपनी नॉर्मली एट हायर देन द मार्केट प्राइस. दिस इज वन मोर एडवांटेजेस. नेक्स्ट, फ्रैक्शनल शेयर होल्डिंग्स एंड ऑड लॉट्स कैन बी अवॉइडेड. जब भी आपको पैसे का जरूरत है, इनिशियली आपने टॉम डिक हैरी को में शेयर भेजे थे, चिल्लर चिल्लर लोगों को ऑड और लॉट्स में, फ्रैक्शंस में भेजे थे, छोटा मोटा मींस अमाउंट में भेजे थे. अभी उतने लोगों को आपको देखभाल करना अच्छा नहीं होता है. जब आप बड़े बन गए तो आपको ऐसे चिल्लर लोगों को हटाना है. सिंपली चिल्लर लोगों से जाके उन लोगों का शेयर को आप बायबैक कर लेना. सो आपका फ्रैक्शनल शेयर्स का और ऑड लॉट्स का जो प्रॉब्लम था वो आप हट जाते हैं. शेयर होल्डर्स का नंबर कम होता है, चिल्लर लोगों का नंबर कम होता है, समझा. सो फ्रैक्शनल शेयर होल्डिंग एंड ऑड लॉट्स कैन बी अवॉइडेड. लास्ट, after buyback of shares, the companies will have the advantage of servicing a reduced capital base with higher dividend. Simple है ना.
आपका रिपोर्टेड अर्निंग सेम है, आपका कंपनी प्रॉफिट तो सेम कमाएगा, लेकिन आपका शेयर कैपिटल का बेस कम हो चुका है। सो आपको आपका कैपिटल का सर्विसिंग आसान है और यील्ड जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। अभी आपने 10 एकड़ में 100 क्विंटल क्यों ये करते हो? अगर आपका न्यू टेक्निक से आप 5 एकड़ से अगर 100 क्विंटल ये करते हो, आपका यील्ड बढ़ गए, है ना? कम कैपिटल में ज्यादा यील्ड। सो यील्ड बढ़ना सबको चाहिए। सो यील्ड आपका कंपनी का बढ़ जाता है और आपका सर्विसिंग कैपिटल वो भी आपका एफर्ट कम हो जाता है। तो दीज आर द 9 एडवांटेजेस बेनिफिट्स ऑफ बायबैक। बोलो, एक, आपका अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर को आप रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, इंट्रेंसिव वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, मैनेजमेंट का एक बेटर कंट्रोल होता है और एग्जिस्टिंग बिजनेस पॉलिसी को हमने कंटिन्यू कर सकता है, प्रमोटर्स डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपना सकता है, बाहर का जो इन्वेशन है, देन इन्वेस्टर को अच्छा खासा पैसा मिलता है, फ्रैक्शनल होल्डिंग ऑड लॉट्स को हमने अवॉइड कर सकता है और आपका कैपिटल सर्विसिंग कम होता है और यील्ड बढ़ जाता है। These are the benefits of buyback. So let me summarize this whole video. We are in chapter buyback of equity shares. Buyback means buying back our own equity shares from the market. This leads to reduction in share capital, keeping reported earnings same. If you want to utilize your idle cash profitably, then buyback is the best strategy. Buyback leads to reduction in share capital, outflow of cash at bank, and reduction in number of shareholders. There's a lot of difference between buyback and redemption of preference shares, although it looks same. And buyback has so many things to prove, so many benefits. Basically, it increases the intrinsic value, profitability of the business, earning per share, market price of the share, management control on your shares. You can avoid fractional shares, odd holdings, and you can have at least the servicing of your capital and yield will increase. This is the basics of buyback of shares. Each one of you go through this first so that you can easily understand the concept of buyback, and whenever you solve practical problems, it's of help to you. So with this, let me conclude this. Very easiest chapter to attempt. Have thorough knowledge of theory. Before next video, go through this video. Till then, bye-bye. Thank you.